Welcome friends to my channel Concept Made Very Easy. I know that you all are eagerly waiting for this part. We have covered 60 to 70% portion of the chapter in our previous parts, part 1 and part 2. Now the remaining and the concluding part will be covered in this part. Okay. पार्ट वन और पार्ट टू में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मीन्स पहले हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस लिखी। केमिकल इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होती हैं और बैलेंस करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने पिछले पार्ट में देखा था। नाउ वी कम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी विल कवर इन पार्ट 3। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको नई चीज़ें बताऊंगा, कुछ आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड नई चीज़ें बताऊंगा ताकि आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सको और उससे आपको केमिकल फार्मूला लिखने में बहुत आसानी और मदद मिलेगी। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Now what are the type of chemical reactions? We have studied the chemical reactions, but we have seen the chemical substance react with chemical substance forming a chemical substance. But is there any pattern among these chemical reactions so that we can learn them better? So we have types of chemical reactions. Now first chemical reactions, I have just underlined this chemical reaction here. First is combination reaction. The general reaction is A plus B plus C, means two reactant one product, ऐसे remember करना है। combination reaction में always single product will be formed from the two substance when reacting together. Now second is decomposition reaction. The general equation is AB. It is decomposed to breaks down to two or more simpler product. That is AB is break down to B plus C. Now displacement reaction. Displacement reaction in which a metal which displaces another metal from its compound. Here B is displaced by A and A will take place of B in the compound and B will be displaced. Double displacement reaction is when there is exchange of ions between the compound. Means A will form compound with D, C will form compound with B, therefore AD and CB. Now finally redox reaction. Redox is reduction and oxidation. This is the small form of reduction and oxidation reaction ka. Here this is A and this is O, this is B. When they react, the O will make bond with B and leave the A. This A is reduced and B is oxidized. We will discuss this later in detail. Two more things: exothermics and endothermic reactions. What are exothermic reactions? Where heat is released. Endothermic, where heat is absorbed during a chemical reaction. Now finally we will learn corrosion and rancidity. corrosion तो आपने सुना ही होगा, जैसे रस्टिंग,
आयरन में रस्टिंग था जैसे हमने एग्जांपल लिया था, और रेंसिडिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, करना चाहूँगा मैं। दोस्तों, पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो भी हमने पढ़ा है, आप उसको एक काम कर सकते हैं कि नोटबुक लेके उन कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, उन केमिकल इक्वेशंस को एक अलग से आप अलग से पेज पर नोट कर लीजिए, सभी केमिकल इक्वेशंस को। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस चैप्टर में आने वाले जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, एक तो उनके नाम पता लगेंगे, जैसे ये लेड नाइट्रेट है, आपको पता लगेगा कि लेड नाइट्रेट होता कैसा है। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये लेड आयोडाइड है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट। एक तो ये मालूम चलेगा कि आपको केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले पता लगेंगे, फॉर्मूले। और दूसरी बात, केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट आयन्स जो हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगेंगे। जैसे लेड नाइट्रेट दो आयन होंगे, ये एक नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। बिकॉज नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन ट्वाइस 2 number, therefore the lead has the oxidation state of 2 plus and minus. Hence similarly for K plus I minus, similarly PbI2, same PbI2 Pb2 plus और K plus। तो इस तरह से आप सभी केमिकल इक्वेशंस को लिखिए, उसे केमिकल कंपाउंड के नाम भी लिखिए, नाम सहित लिखिए, और उनको ना आयन वाइज अलग कीजिए, और आयन में आने वाले उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को नोट करिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी एक सवाल आएगा जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, जिसमें केमिकल कंपाउंड का नाम दिया होगा और वो किसी केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आपको पता रहेगा, और आप आसानी से उसको सवाल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये काम कीजिए, ताकि क्योंकि सिर्फ देखने से ही कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस आप इसको नोट डाउन करिए, उसको लर्न करिए, उसको समझिए, उसके नोट बनाइए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और लगता है कि मैं कॉन्सेप्ट आपके ऐसे क्लियर कर पा रहा हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। इसके बाद हम अपना पार्ट 3 शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। We have studied the chemical reaction represent a chemical change. Chemical reactions happens whenever a chemical change occurs. In a chemical reactions, the following points you have to note down. In a chemical reactions, atoms of one element do not change to atom of other element. इसका मतलब ये है हुआ कि मैग्नीशियम नहीं बदल जाएगा किसी और में, जैसे आयरन में, जैसे किसी में भी ले लीजिए, कैल्शियम में ले लीजिए, बट मैग्नीशियम ही रहेगा, मैग्नीशियम का एटम मैग्नीशियम ही रहेगा, आयरन का एटम आयरन ही रहेगा, वो किसी और एलिमेंट में नहीं बदलेगा, वो मैग्नीशियम एलिमेंट का ही एटम रहेगा, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन की खासियत है कि इसमें atoms of one element do not change to other element. Neither atom disappear nor they appear from elsewhere. ऐसा भी नहीं होता कि Mg के एटम गायब हो जाएं इक्वेशंस में से, रिएक्शन में से, और कुछ एटम और आ जाएं। जैसे हमने रिएक्शन पढ़ी थी Mg + O2 बराबर MgO। अब इसमें ये देखिए कि ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कम हो रहा है, एक कम हो गया, Mg का एटम सेम है, पर ये ऑक्सीजन का एटम कम नहीं हुआ है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम ही हैं। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के 2 ही एटम हैं और मैग्नीशियम भी 2 एटम पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखते हैं। नहीं तो वो स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, ध्यान रखिएगा, उसमें लॉस ऑफ मास रहता है, और जब लॉस ऑफ मास रहता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है।
इसलिए ध्यान रखिएगा, एटम ना तो कहीं से आएंगे और ना कहीं जाएंगे, बस एटम रीअरेंज होंगे बॉन्ड में। इसमें आगे 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 वाले पॉइंट में देखते हैं। देयर इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, जैसे Mg और O2 मैं समझाऊंगा आगे आपको। देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम सच दैट rearrangement produce substance which has different property from substance taking part in the reaction। उसमें एटम का गठजोड़ होता है, बस एटम के बीच में बॉन्ड टूटते हैं और एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो नया एलिमेंट बन जाता है। नया एटम चेंज कभी नहीं होता, एटम जो भाग ले रहा है वो ही रहेगा, बट एलिमेंट चेंज हो जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा रीअरेंजमेंट से। ठीक है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट आर कॉल्ड केमिकल सब्सटेंस, यह तो हमने देखा था। नाउ हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नाउ we take the example of activity 1.1 Mg plus O2 plus MgO। अब तक हमने जितना पढ़ा है केमिकल इक्वेशन के बारे में सब नॉलेज लगाते हैं। अब हम इसमें मैग्नीशियम को हमने सॉलिड स्टेट से दिखा रखा है, ऑक्सीजन को हमने गैसेस स्टेट से दिखा रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने सॉलिड स्टेट से दिखा रखा है। मैग्नीशियम एटम मेक देयर सब्सटेंस होल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड, मतलब मैग्नीशियम के जो एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, और यह एटम जो जितने एटम टेक पार्ट ले रहे हैं इसमें उतने ही एटम इसमें भी होंगे प्रोडक्ट में, उतने जितने ऑक्सीजन के एटम पार्ट ले रहे हैं उतने ही ऑक्सीजन के एटम मैग्नीशियम ऑक्साइड में होंगे। एटम कहीं नहीं आते, जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था। अब देखिए ऑक्सीजन के एटम भी अपने आप में बॉन्ड से हेल्ड हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इस मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड मैं आपको सिर्फ एक वो दे रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ इसका एक, कि मैग्नीशियम के बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस and different altogether different property means magnesium has a silvery white color, oxygen is a gas, and we get a magnesium oxide which is solid and which is powder। आपको याद हो तो ये पाउडर था सब्सटेंस, इट इज़ वाइट पाउडर। तो हमने देखा केमिकल रिएक्शंस में एक तो एटम ऑफ वन एलिमेंट, मैग्नीशियम का एटम मैग्नीशियम इसमें भी है, ऑक्सीजन का एटम उतना है, कभी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। मैग्नीशियम का एटम आयरन में नहीं बदलेगा, ना ऑक्सीजन का एटम सल्फर में बदल जाएगा। दूसरा हमने देखा कि ना ही एटम कहीं से आते हैं रिएक्शन में और ना ही कहीं चले जाते हैं। मैग्नीशियम के जितने एटम थे उसमें भी जाएंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में, अगर हम उसको बैलेंस कर दें तो 2 एटम थे मैग्नीशियम के, 2 एटम यहाँ पे भी हैं, और 2 एटम ऑक्सीजन के थे, वो 2 एटम यहाँ पे भी हैं। तो एटम कहीं आते नहीं जाते नहीं, सेम समान रहते हैं। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड हमने देखा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो गया। इस तरह से हम केमिकल, और दूसरी बात यह है, अब से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी मैं केमिकल इक्वेशंस लिखूँगा उसमें उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर लिखूँगा, जिससे कि आप इसको अलग से कॉपी पे नोट डाउन कर लें अलग पेज पे। जैसे इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, ऑक्सीजन का है 2-, तो मैं ऐसा लिख दूंगा ताकि आप जब इन सब्जियों को नोट कर लें तो आपको ऐसे एक चार्ट बन जाएगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, और जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे कि आपको आगे के आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ इससे, पर अब से मैं कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें लिखने की हर एक इक्वेशन पे, ताकि आपको आइडिया हर एक इक्वेशन में मिलता रहे, तो अब आपका आइडिया कॉन्क्रीट होता रहे, धीरे धीरे सेट होता रहे। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दिस इज also called synthesis reactions because in such reactions single product is formed of the combination of 2 or more reactant or substance। ठीक है, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में इनका जनरल फॉर्म इस तरह का होता है। If A is chemical substance, B is chemical substance and C is chemical substance, then A react with B
टू फॉर्म अ केमिकल सब्सटेंस C. मतलब single product C. If two reactant are taking part in the reaction and we get a single product, then this reaction is called combination reaction. Okay. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्विकलाइम का। दोस्तों क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन बड़ा विगरस होता है, बहुत तेज़ी के साथ करता है इसको, और स्लेट लाइम बना देता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द इक्वेशन CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, H2O liquid, and calcium hydroxide is aqueous and heat is released. This is slaked lime. स्लेक लाइम वो वाइट वॉशिंग के लिए काम आता है। जब हम वाइट वॉश करते हैं तो ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलता है और उससे CaCO3 प्राप्त बना देता है, जो हमें हमारी जो शाइनी लेयर बनती है इसके बाद वो इसी की लेयर बन जाती है CaCO3 के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ मिक्स कर लिया, लेकिन इसका विगरस रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है बहुत सारी, इसलिए क्या है ये एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज हो रही है। तो मैंने यहाँ देखिए कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम का 2+ एंड ऑक्सीजन का 2-। ऐसे ही यहाँ पे 2+ और हाइड्रोक्साइड का -। तो देखिए कैसे बना, यहाँ पे आइए Ca2+ हाइड्रोक्साइड का -। ठीक है, -1। अब नाउ इन दोनों को ये दोनों आपस में पास में आते हैं, तब क्या होगा, ऐसे दो आयन चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए कैल्शियम को। जब ये पास में आ रहे हैं तो एक Ca हो जाएगा और 2 H हो जाएंगे। इस तरह से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं जब आप इक्वेशन को पढ़ेंगे और उनके कैटायन और एनायन को अलग अलग कर लेंगे। कैटायन पॉजिटिव आयन होता है, एनायन नेगेटिव आयन होता है। कैटायन और एनायन को अलग अलग कर लेंगे, फिर इनको जोड़ के देखेंगे, तब आप आराम से कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन एंड राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस आई एम टीचिंग यू। I am giving you example. That another third example, magnesium and oxygen, magnesium oxide आपने जैसे पढ़ा था एक्टिविटी 1.1। Now exothermic reactions क्या होती हैं? Exothermic reactions होती हैं reactions in which the heat is released called exothermic reaction। Now ये हमने देखा था जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था तो हीट जनरेट हो रही थी, है ना। ऐसे ही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिल रहे थे तो वाटर बन रहा था, तब हीट जनरेट हो रही थी। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हीट जनरेट हो रही थी, रिएक्शन पे हीट जनरेट हो रही थी, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ रेस्पिरेशन। We have studied the glucose react with oxygen, it forms carbon dioxide and water, no, both are aqueous. Glucose is aqueous, oxygen is aqueous, now carbon dioxide is aqueous and hydrogen is water liquid। ठीक है, और decomposition of vegetable matter into compost are also a exothermic reaction। जब एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा जाए तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं, इसलिए आप इन एग्जाम्पलों को देखें, याद करें और समझने का प्रयास करें कि इन इक्वेशन हुए कैसे हैं, इनमें केमिकल फॉर्मूला कौन कौन सा है, केमिकल कंपाउंड कौन सा है, कैटायन एनायन, सब ढूंढने की कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए इस चीज़ को, तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा केमिकल फार्मूला बनाना, और आप ये आराम से रिएक्शन रटने की जगह समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे रटिए मत, समझिए। समझ के जो इक्वेशन लिखी जाती है एग्जाम के समय, तब मतलब माइंड में स्ट्रेस कम रहता है। ठीक है, इसलिए आप इसे समझिए और लिखिए।
The second type of reaction is decomposition reaction. This decomposition reactions का मतलब होता है in which single substance decomposes to form two or more substance. Means एक single substance A B, मान के चलिए A और B में ब्रेक हो रहा है या डिकम्पोजिस हो रहा है, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी. ठीक है, जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड करें, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब ये डिकम्पोज होगा ए और बी में. ये एनर्जी तीन तरह से प्रोवाइड की जा सकती हैं और एनर्जी प्रोवाइड होने के तरीके पर डिपेंड करता है उस रिएक्शन का नाम. जैसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन in here energy is supplied in the form of heat. For example, when ferrous sulfate is heated in a test tube, the following reaction take place. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 जो कि सॉलिड है, उसको हीट दिया गया. ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट. हीट दिया गया तो फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और उससे निकलने वाली गैसें कौन कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि जो फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर है, उसका ग्रीन कलर था शुरुआत में और उस जब हीट दिया उसका कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन. सल्फर डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग, तो सल्फर कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग स्मेल होती है सल्फर की. और इसमें फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2+ एंड सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2-. तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. कंपाउंड का नाम, उसका फॉर्मूला, उसका कलर, जहाँ तक संभव हो मैं उसका कलर लिखने की कोशिश करूँगा और उसके ऑक्सीडेशन मैंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँगा और जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से जानकारी देने की कोशिश करूँगा इक्वेशन में, ताकि उस चीज़ को आप अलग से नोट कर लें और अलग से पढ़ें उसको. सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली. CaCO3 सॉलिड डिकम्पोजेस ऑन अप्लाइंग हीट टू CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हेयर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन से 2+, कार्बोनेट का 2-. दिस रिएक्शन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट के मैन्युफैक्चर में काम आता है. Another example of lead nitrate. When solid lead nitrate decomposes, it emit a brown fume. It burned with a brown fume and bright yellow colored compound formed. And its chemical equation is lead nitrate when heated, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. The brown fume is due to the evolution of this gas. Or the yellow color compound is lead oxide. Now in lead nitrate the oxidation state of lead is 2+. ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता ही है 2-. नाउ हेयर इस एग्जांपल से क्वेश्चन बन जाता है. जैसे एक कंपाउंड है X, हीटिंग व्हेन हीटेड produce brown fume and a bright yellow colored compound is formed. Name the X and the bright brown fumes emitting gas. Means what emit the brown fumes. तो आपको लिखना पड़ेगा उस कंपाउंड का नाम. X का नाम क्या है, लेड नाइट्रेट है, और जो येलो सब्सटेंस बना है वो लेड ऑक्साइड बना है, और जो ब्राउन फ्यूम निकली हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से निकली हुई हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से वो ब्राउन फ्यूम आई हैं. द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट by supplying energy in the form of electricity. Just remember electrolysis. Electro means
something related to electricity. The heat is supplied in the form of electricity. इसमें हम एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. नाउ आप ये एपरेटस देख सकते हैं. एपरेटस बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे. इसमें वाटर है, दो टेस्ट ट्यूब हैं जो उल्टी लगी हुई हैं तले से, और एक उनके जो एंड हैं वो बैटरी से जुड़े हुए हैं. ये टेस्ट ट्यूब एनोड है और ये कैथोड है. इस वाटर में हल्का सा डाइल्यूट HCl मिला हुआ है, एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं इसको. नाउ व्हेन द करंट इज पास थ्रू दिस वाटर, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन. द हाइड्रोजन आयन is liberated and collected in under cathode, and the oxygen ion liberated which is collected in test tube, this anode. तो this आप देख रहे होंगे गैस ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं. ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है. तो हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं. H2O when passed electricity decomposes to hydrogen and oxygen. Decomposes to hydrogen and oxygen. एक और एस्पेक्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो हाइड्रोजन का जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम है, इसमें डिफरेंस है. जो हाइड्रोजन के एटम है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. मीन्स हाइड्रोजन जो गैस कलेक्ट होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी. ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी किस रेशियो में? अगर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 2:1, अगर 1 यूनिट ऑक्सीजन जमा हो रही है तो 2 यूनिट हाइड्रोजन जमा हो जाएगी. तो इस तरह से वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगी. द थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. In photolytic decomposition, energy is supplied in the form of sunlight. Like photo means something related to light, sunlight. Here sunlight is used as a source of energy. The two important reactions given in your textbook NCERT, that one is white silver chloride turn gray in sunlight. When silver chloride is exposed to sunlight, it turns to gray color. Now the equation become AgCl, silver chloride. When exposed to sunlight, it produce silver metal and chlorine gas. Now the AgCl is white and Ag become gray. Ag become gray. Now can you tell me the oxidation state of Ag, silver? Now you can write AgCl. We know Cl has -1 oxidation state and only one Cl atom is attached to Ag. Therefore it must be +1 oxidation state. Now you know that Ag has +1 oxidation state. Second reaction is silver bromide decomposes to silver and bromine. Similarly, silver bromide AgBr exposed to sunlight, Ag and Br. The AgBr is something pale yellow water insoluble salt, and Ag is gray. Therefore you must remember these two equations. These two equations. These reactions are used in black and white photography. क्वेश्चन आ सकता है कि write the reaction which is used in black and white photography. तो आपको ये reaction लिखनी है. Now take activity given in your book. When 1 gram of ammonium chloride mixed with 2 gram of barium hydroxide, then what happens to the temperature of the reaction mixture? The temperature drastically drops down. This reaction is endothermic reaction.
Yes. Endothermic reactions are the reaction in which the energy is absorbed. Energy is absorbed. And what we have learned in the decomposition part of the decomposition part, the three type of reaction: thermal decomposition, electrolytic decomposition, photolytic decomposition. इन सभी इक्वेशंस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, तो ये सभी इक्वेशंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो इस ये जो एक्टिविटी है वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। इसकी इक्वेशन इस तरह से है: बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है अमोनिया और ये है हाइड्रो वाटर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड से मिलता है तो BaCl2 बनता है और अमोनिया गैस जनरेट होती है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसमें बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ NH4 का प्लस, क्योंकि Cl का माइनस है। इस तरह से आप बना सकते हो, बेरियम का 2+ Cl का माइनस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज highly endothermic. Next type of reaction is displacement reaction. Now refer to activity 1.9 where हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है। उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक थ्रेड के जरिए हमने 2 आयरन नेल सस्पेंड कर दिए हैं और इस टेस्ट ट्यूब और आयरन नेल को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद क्या होता है, ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, क्या इसके कलर में कुछ चेंज होता है, कॉपर सल्फेट के कलर में, क्या आयरन नेल का जो शुरुआती कलर था क्या वो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, चलो हम देखते हैं इस चीज़ को। नाउ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है CuSO4। SO4 की हम जानते हैं 2- है और यहाँ पे एक SO4 आयन कॉपर के साथ लग रहा है, इसलिए इसकी भी 2+ होगी, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Cu2+। नाउ इट इज़ ऑफ ब्लू कलर। ना आयरन नेल इज कलर सिल्वरी ग्रे, मीन्स फ्रेश आयरन नेल इस रंग का होता है, सिल्वरी ग्रे रंग का, जो कि इसमें लटका रखी है। 20 मिनट बाद हम देखते हैं कि जब हम आयरन नेल को निकालेंगे तो आयरन नेल का रंग जो है वो ब्राउनिश हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर आ गया है उस पर, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो गया है, हल्का पड़ गया है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हल्का क्यों पड़ा और आयरन नेल का कलर ब्राउन कैसे हो गया, ये इस तरह से हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नाउ द कलर विच डिपॉजिटेड ऑन द नेल इज ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। नाउ कॉपर, इसका मतलब है कॉपर डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब जब कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकल कर आयरन पे जाके डिपॉजिट हुआ है, और उसके साथ ही कुछ आयरन ने कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह ले ली है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे सच अ रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive from its compound. Now when it displaces copper from copper sulfate, we get ferrous sulfate. Now we know that आयरन की जो वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है, ऐसे ही इसकी 2- होती है, therefore this is ferrous sulfate, और ये भी एक्वास होगा, और नाउ प्लस कॉपर बन जाए। कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा आयरन नेल पे, तो उसका रंग चेंज हो जाता है, आयरन नेल का रंग चेंज हो जाता है।
तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? सो डेफिनेशन बिकम such reactions in which more reactive metal displaces less reactive metal from its compound. So friend, the displacement reaction में रिएक्टिविटी देखी जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह से होता है कि आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ये रही ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये एक टेबल बनी हुई है, एक सीरीज में मिला हुआ है, लिखा हुआ है ना। ये सीरीज इस तरह से लिखी है कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी इनकी, मीन्स टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट डिक्रीज होगी, और जब हम ऊपर इसको नीचे से ऊपर चलेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम, एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड। तो हम देखते हैं कि all metal are listed in this list as per its reactivity. तो ऊपर से नीचे reactivity decrease, नीचे से ऊपर reactivity increase. Now when we take the example we have just learned, iron and copper sulfate solution. Here iron displaces copper. आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं आयरन कहाँ है, आयरन कॉपर से बहुत ऊपर है, इसलिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इट कैन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इट कैन ऑल्सो डिस्प्लेस लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। Copper will not displace iron from its compound, or neither iron will displace calcium from its compound or aluminum from its compound. तो हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकता है। तो फ्रेंड ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख लीजिए और आप इसको मेमोराइज करिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आपको जब भी ऐसी रिएक्शन आएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब आपको देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उनकी रिएक्टिविटी है, और अगर सॉल्यूशन में लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और जो डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्शन अकर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, विल दिस गिव एनी रिएक्शन? विल देयर रिएक्शन अकर? क्या इसमें रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो इट विल नॉट एबल टू डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। You may write down this other example. Zinc react with copper sulfate. Zinc sulfate is formed. Copper is displaced. Lead react with copper chloride. This copper chloride and form lead chloride and displaces copper. We know the lead has 2 plus, Cu 2 plus. So please आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते जाइए अलग अलग एलिमेंट के, और फिर बाद में इसको ट्राई कीजिएगा कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। हेयर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर। पीबी लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर रिएक्शन अकर। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी 1.10, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इज मिक्सड विथ 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। फॉलोइंग रिएक्शन अकर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, याद रखिए। वर्ड इक्वेशन क्या होगी? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुद केमिकल कंपाउंड के नाम और उन पर कैटायन, उन पर ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर साथ में लिखा करूँगा। तो इस तरह से मैंने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जैसे
फ्रेंड, नाउ सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, सोडियम पे +1 एंड सल्फेट पे 2- चार्जेस हैं, मीन्स दे आर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 and 2-. When they combine each other, there will be need of 2 sodium atom to combine with sulfate atom. So we write sodium sulfate as Na2SO4, which is aqueous state, because it is solution in water. Now similarly, BaCl2, barium chloride. Ba has 2+ and chlorine has 1-. When it combines, then 2 chlorine will be needed to form a compound BaCl2 aqueous. Ba2+ SO4 2- BaSO4 barium sulfate solid, because it will get precipitate. Now sodium chloride, as you know, NaCl. Now the chemical equation is Na2SO4 aqueous, BaCl2 aqueous, BaSO4 solid, and it will precipitate. NaCl is aqueous. Now please balance the equation. देखिए बैलेंस करके कि यह बैलेंस है या अनबैलेंस है। इसका तरीका आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसे आप एक टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए हर एक एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज यू हैव टू नो द एलिमेंट एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, so that a chemical formula can be framed. The balanced chemical equation is look like this. Here 2NaCl, the equation will balance, and the BaSO4 precipitate. It is a white solid formed during the reaction, which is insoluble in water due to the combination of Ba2+ and sulfate ion. ठीक है, तो मैंने बताया जैसे precipitate क्या होता है, the insoluble substance in water form. This insoluble substance during the reaction formed is called precipitate, and the chemical reaction in which this precipitate is formed is called precipitation reaction. Please note down this reaction also. This is another type of reactions where precipitate formed during the reactions. Another example, recall activity 1.2, where lead nitrate react with potassium iodide. These are both are solution and form the lead iodide and potassium nitrate. Here lead iodide is get precipitated, यानी कि solid है. Now cation and anion compound physical state. इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए. जैसे लेड नाइट्रेट के लिए Pb का 2+ है, नाइट्रेट का माइनस है, तो हम PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज एक्वास इन दिस एक्टिविटी एंड इट्स कलर इज वाइट. Now potassium iodide become Ki, the orange brown. Orange brown is color. Lead iodide PbI2 bright yellow, and the KNO3 potassium nitrate, and it is white. Now you know the oxidation state of various element and the oxidation state of various anion cation. Now the chemical formula are easily being framed, and I also write the physical state and जहाँ तक संभव है मैं उसका कलर भी लिख दिया करूँगा, ताकि आपको उस कलर से ही जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कलर से ही पहचान सकते हैं. The chemical equation become lead nitrate aqueous 2Ki aqueous leads to PbI2 solid, which is precipitate, and potassium nitrate aqueous. So friend, please write these cations and anions in your notebook. Please work on this so that you will get very well versed with the chemical formula, because ये केमिकल फार्मूला ही है जो केमिकल रिएक्शन को बोरिंग बनाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं केमिकल सब्सटेंस के बीच में होती हैं, और केमिकल सब्सटेंस याद करना बड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चैप्टर छोटा सा ही है, लेकिन अगर आप इसके केमिकल कंपाउंड की लिस्ट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था, ऑलमोस्ट 50 to 60 केमिकल कंपाउंड विल अपीयर्स आ जाएंगे आपके सामने और आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए
प्लीज़ दोस्तों आप इसको ज़रूर अपने नोटबुक में अलग से लिखते चलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। The fifth reaction is redox reaction. Redox reaction is a short form for reduction and oxidation. Reduction का RED and oxidation का OX मिलके रिडॉक्स बन जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर इसके लिए हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन से आपको नाम से लग रहा होगा ऑक्सीडेशन, समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, मीन्स the substance which gain oxygen. This process is called oxidation. Means ऐसी reactions हम कह सकते हैं, ऐसी reactions in which some substance either gain oxygen or lose hydrogen atom called oxidation reaction. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है। और जो सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन एटम undergo oxidation reaction is called oxidized, is said to be oxidized, वो oxidized हो जाता है। और the substance that provide oxygen atom for oxidation of the substance is known as oxidizing agent. So first friend, oxidation means gain of oxygen or lose of hydrogen, and the substance which gain oxygen is said to be oxidized, and the substance which provide oxygen during the reaction is called oxidizing agent, which help in oxidation process. For example, for oxidation process, when copper powder is heated in air, ठीक है, the surface gets coated with black कॉपर ऑक्साइड पाउडर। कॉपर ऑक्साइड पाउडर मीन्स उसकी जो सरफेस होती है पाउडर की, वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ढक जाती है, कॉपर 2 ऑक्साइड से ढक जाती है। दिस इज ड्यू टू द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय द कॉपर पाउडर। मीन्स कॉपर के द्वारा ऑक्सीजन गेन होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है और वो ब्लैक कोटिंग उस पाउडर पे बना देता है। नाउ इट्स रिएक्शन कैन बी रिटन एज इक्वेशन, एंड इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज Cu copper burn in oxygen gives copper oxide. Now that Cu gain oxygen. Remember, the substance which gain oxygen is said to be oxidized. The substance which give oxygen for the process of oxidation called oxidizing agent. Here oxygen is oxidizing agent, copper is oxidized, or oxygen is oxidizing agent, and this reaction is oxidation reaction. The black coating formed over the surface of powder is nothing but copper oxide. Here copper is oxidized to form copper oxide. Oxygen is oxidizing agent. I have written this. तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एंड दिस होल रिएक्शन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Also from activity 1.1, where magnesium ribbon is burnt in oxygen, the magnesium ribbon burned with a dazzling flame to form magnesium oxide. This is also an example of oxidation, because magnesium is getting oxygen from oxygen atom to oxidize to magnesium oxide. Therefore oxidation take place. This is Mg is oxidized, O2 is oxidizing agent. Also another example you can note, zinc oxide, when react with carbon and heated the mixture, we get zinc and carbon monoxide. This is the process of extracting metal from its ore. ऑक्साइड ओर में ज़्यादातर जिंक मिलता है, उसको फिर हम उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं. कार्बन इज oxidized because
ZnO provide oxygen to carbon, means carbon will attract oxygen एंड फॉर्म CO, और जिंक से ऑक्सीजन अलग हो जाता है. कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज एंड ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. नाउ रिडक्शन रिएक्शन, सच रिएक्शंस इन विच सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन. अब उसका अपोजिट है, पहले ऑक्सीजन गेन किया था तो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था, अब लूज करेगा तो रिडक्शन होगा. और गेन हाइड्रोजन, एटम कॉल रिडक्शन रिएक्शन. ना सब्सटेंस दैट लूज ऑक्सीजन एटम इज सेड टू बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाता है. और द सब्सटेंस विच विथड्रॉ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ सिमिलर डेफिनेशन बट जस्ट द ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान हो रहा है वो अपोजिट हो रहा है. बस इतना हो रहा है कि ऑक्सीजन वहाँ पे लिया जा रहा था, ऑक्सीजन लग रहा था तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा है तो रिडक्शन. तो इस तरह से दोनों को प्रोसेस को आप समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. When copper was remember when copper was heated with oxygen to form copper oxide. This is heated substance. That was heated substance. When this heated substance is, when hydrogen gas is passed over this heated substance, we get, with the equation get reversed, we get again copper and water. Now here copper oxide ने ऑक्सीजन लूज किया और कॉपर बना. ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस्ड. हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन विड्रॉ किया इससे, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अब द होल प्रोसेस, द रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. नाउ वी टेक another example that we have taken as example for oxidation reaction also, where zinc oxide is heated with carbon, we get zinc and carbon monoxide. Here zinc oxide loses oxygen to carbon and form zinc. Therefore zinc oxide is getting reduced and carbon is reducing agent. प्लीज़ नोट डाउन बच्चों, ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहते हैं, क्योंकि आपको एक इक्वेशन पूछी जाएगी, उसमें ये पूछा जाएगा कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड और विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड whether the given equation is example of redox reaction or not, whether single oxidation process is taking place or reduction is process taking place. You have to just see that the oxygen, the substance is getting oxygen is oxidized and substance which is losing oxygen is reduced. ठीक है. Now here one more aspect of this equation can be seen, like C, carbon is getting oxygen to form carbon monoxide. It is getting oxygen from zinc oxide. Now it is getting oxygen, it is oxidized, and ZnO is providing oxygen, it is oxidizing agent. Hence oxidation reaction also taking place in this reaction. This equation is an example for both oxidation and reduction. When redox reaction is asked in examination, or reduction oxidation reaction asked in examination, and you have to give example, you can give example this equation, or CuOH2CuH2O. ठीक है. Now we finally move to our next section, redox reaction. The redox reactions, such reaction in which one substance is oxidized and while other is getting reduced, means एक ही reaction में reduction and oxidation process are taking place simultaneously. One substance is reduced
and other is oxidized. So such reactions are called redox reaction. Redox reaction means reduction and oxidation. Now here copper oxide, we have discussed this example above. Another example you can take manganese oxide. When react with HCl, manganese chloride and water on chlorine is getting. Now manganese oxide loses oxygen to form manganese chloride, that is it is reduced. It is reduced and HCl is reducing agent. Now also when HCl form Cl2, HCl form Cl2, it is losing hydrogen atom. Now remember the definition of oxidation. I have said gain of oxygen or lose of hydrogen, losing of hydrogen. When HCl loses hydrogen, it is oxidized. Therefore this is oxidation and this is reduction. This is also an example you can quote in your examination. Now friend, the chapter is over. Finally, two more topics remains to discuss. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, आप एक बार इसको फिर से समझिएगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. जब क्वेश्चन आता है तो हम जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं और जो रिड्यूस हो रहा था उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन के द्वारा. लेकिन इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए और इस जो पोर्शन जो मैंने पढ़ाया आपको रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का, इसे दोबारा देखिएगा और इसको नोट डाउन करिए डेफिनेशन को, और दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को टेबल बनाइए, दोनों को अलग अलग करिए और दोनों में डिफरेंस लिखिए, जिससे डिफरेंस आपको पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन किस हिसाब से या किस की वजह से होता है, ऑक्सीजन के लेन देन की वजह से होता है. ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा और हार्ड वर्क कीजिए, आप जरूर क्या बोलते हैं इसको समझ जाएंगे. और हम चलते हैं अगले टॉपिक पर. फ्रेंड्स, लास्ट टू टॉपिक रह गए हैं, एक करोजन, एक रेंसिडिटी. नाउ corrosion, the definition of corrosion you may write: when a metal is attacked by substance like moisture etc. is said to corrode, and this process is called corrosion. This moisture and acid is from surrounding of metal. When metal is kept and it is attacked by substance from the surrounding like moisture and acid, they said to corrode, and this process is called corrosion. Some chemical changes occur, means a reaction taking place when metal is placed in such surrounding. This process is called corrosion and metal get corroded. Now for example, the example of corrosion, the black coating on silver. When silver vessels or silver vessel are kept in such atmosphere, moisture and such there are moisture or some acid are there, then the black coating is formed on its surface. ऐसे ही कॉपर पे ग्रीन कोटिंग फॉर्म हो जाती है. नाउ फॉर आयरन, this process is called rusting. We have studied rusting. Equation is FeO2 in presence of water, ferric oxide. ठीक है, this ferric oxide is rust because iron is getting oxidized and ferric oxide is formed. We get a powder, reddish brown powder something on the surface of the iron. आयरन जो न्यू होता है वो शाइनी सरफेस होता है, और जब उसके ऊपर जब ऑक्साइड फॉर्म होता है तो उसमें ब्राउन कोटिंग बन जाती है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं. वो रस्टिंग क्या होती है, आयरन को ईट करती है, खा जाती है. मीन्स आयरन के एटम्स उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं, वो पाउडर के रूप में झड़ जाता है, वो उसे हम झाड़ देते हैं, तो आयरन कमज़ोर हो जाता है, जो मेटल है वो कमज़ोर हो जाता है. उस आयरन मेटल से बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एंड आयरन नेल्स ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन. तो sustain a great damage from rusting. Now rusting can be prevented
by one method, that applying paint on the surface which prevent iron to come in direct contact with the surrounding. Therefore, if the contact iron का कांटेक्ट सराउंडिंग से तोड़ दिया जाए तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो आयरन के ऊपर एक ब्राउन रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म नहीं हो पाएगा और आयरन काफ़ी दिन तक स्ट्रेंथ उसकी बनी रहेगी, आयरन की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो ये आपका कोरोजन का टॉपिक था जिसमें हमने रस्टिंग पढ़ा और हमने पढ़ा black coating on silver and green coating on copper. If you are asked to give example of corrosion, then you can give the example of this silver, copper and rusting. And if you are asked the process of how rusting can be prevented, then you can say by applying paint on the surface of the iron so that the oxidation of the iron will not take place. Now rancidity. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. मान के चलिए जो खाने में फैट्स और ऑयल होता है, अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसका स्मेल हमने देखा होगा जब खाना बहुत देर तक रखा रहता है बाहर तो उसमें से स्मेल आने लगती है। उसका टेस्ट भी एक मतलब वो टेस्ट नहीं आता जो पहले होता है टेस्ट शुरुआत में, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ें होती हैं व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है। द प्रोसेस टू फॉर्म रैंसिड कॉल्ड रैंसिडिटी। दिस प्रोसेस फॉर्म रैंसिड मतलब ये एक उनमें रैंसिड क्रिएट कर देते हैं और द प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। नाउ हमने देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं खाने में, एंटीऑक्सीडेंट। दिस एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं ताकि खाना काफ़ी देर तक उसका जो स्वाद है, उसका जो स्मेल है बनी रहे। और समटाइम वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो फिर रैंसिड बना देगा उसमें। ज़्यादातर एयर टाइट कंटेनर में और एंटीऑक्सीडेंट उस फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कंटेन ऑयल एंड फैट्स। डू यू नो फ्रेंड, चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लशेस बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। चिप्स के बैग में हवा भरी होती है, वो हवा में वो नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं ज़्यादातर ताकि वो ऑक्सीडेशन उस जो चिप्स है जिसमें चिप्स में जो ऑयल और फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो चिप्स और उनकी वो तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो नाइट्रोजन गैस से उस चिप्स बैग को फ्लश करते हैं उसे ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। दोस्तों, नाउ वी हैव कम टू एंड ऑफ पार्ट 3 and the end of our chapter chemical reactions and equations. In this chapter we have learned about types of chemical reactions: combination reaction, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, redox reaction, and the two more concept corrosion and rancidity. दोस्तों, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी मैंने रिएक्शंस के एग्जांपल लिए हैं, इक्वेशंस लिखी हैं या फिर रिएक्शन समझाई हैं, उनको आप किसी एक जगह पे नोट कर लीजिए। सभी रिएक्शंस को, ऑलमोस्ट 20 to 30 रिएक्शंस होंगी, उनको रिएक्शन को नोट कर लीजिए और उसको फिर क्लासीफाई करिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिकम्पोजिशन में भी 3 पार्ट थे, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, उसमें वो भी क्लैरिफाई करिए। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी इक्वेशन को रिएक्शंस क्लासीफाई करने की कोशिश करिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है।
तो आपको इससे एक ये बनेगा कि आप केमिकल रिएक्शन को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे, कि देखते ही पहचान जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, कौन टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। और इसमें हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो आपको इससे मालूम चलेगा कि आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी उसको क्लासीफाई करते जाइए साथ साथ में। तो जब तक आप सभी के इक्वेशन लिख लेंगे और क्लासीफाई करेंगे तब आप देखेंगे कि आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो और कुछ नहीं, बस केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल फॉर्मूला, नथिंग एल्स। तो इसलिए आप उन इक्वेशंस को लिखिए, क्लासीफाई करिए, ट्राई करिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में ये सब चीज़ें लेके आने वाला हूँ। पार्ट 4 में मैं इसी चीज़ को लेके आने वाला हूँ, सभी इक्वेशन लिखूंगा, मैं उनको क्लासीफाई करूँगा। पर इससे पहले आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें। दूसरा मैं पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे। आप जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं उनको कैटायन, एनायन के रूप में लिखें, ठीक है। दूसरा, उनका जहाँ तक संभव हो कलर वो लिखें, तो जिससे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, तो बेरियम में कैटायन क्या है, Ba2+, कैटायन क्या है, सल्फेट 2-, एंड वाइट सॉलिड इनसॉल्यूबल साल्ट। तो हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं और आपको इजी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितने भी पार्ट मैंने अभी तक पढ़ाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके कंसेप्ट समझने में हेल्प किए होंगे। और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, कुछ नया तरीका मैंने लिया है ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट भी आए और आप हार्डवर्क भी करें। मेरा पढ़ाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपका हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करें, लिखें, कंसेप्ट लिखें, टर्म्स लिखें, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए टर्म्स और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी मेरे चैनल कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।